Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Today we will study about the Sonnet 18 written by William Shakespeare, the question answer of that sonnet. I will tell you the page number of the help book MBD of the question. Please note it. First question is, question second, what does the poet say about the month of May, the month of May and how does he eulogize eternal summer. Eulogize means praise करना, प्रशंसा करना. The question is that what does the poet say about the month of May and how does he eulogize eternal summer? कि poet means William Shakespeare मई के महीने के बारे में क्या कहता है और उसकी किस तरह प्रशंसा करता है. द आंसर इज दैट पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 MBD. Okay, and the answer is that May is a month of the summer season. In England, it is a month of sweet warmth and lovely flowers. The poet says that sometimes it becomes too hot and rough winds shake the lovely flowers of May. In England, the summer is a season of pleasant warmth and lovely flowers. Thus, eternal summer means eternal youth and beauty. But it is the eternal summer of his friend and that the poet talks of. The poet wants to say that May is a month of the summer season. May is a month of the summer season कि मई का महीना गर्मी का मौसम होता है. इन इंग्लैंड बहुत ही स्वीट होता है, लवली होता है, सुंदर फूल खिले होते हैं. The poet says that sometimes it becomes too hot and rough winds shake the lovely flowers away. लेकिन कभी कभी इस महीने में रफ विंड्स चलती हैं, भयानक हवाएं चलती हैं जो नई नई कलियों को, फूलों को गिरा देती हैं, उनको हिला देती हैं. इंग्लैंड में मई का महीना, द मंथ ऑफ मे, प्लेजेंट होता है, वार्मथ होता है, बहुत ही सुंदर होता है. इस प्रकार thus the eternal summer means eternal youth and beauty, but it is the eternal summer of his friend that the poet talks of. एक्चुअल में विलियम शेक्सपियर अपने फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की सुंदरता का वर्णन कर रहा है थ्रू द मंथ ऑफ मे. और वह इसकी तुलना मई के महीने से कर रहा है
That is the answer of this question. And the second question is question number 3. How does Shakespeare compare eternity? How does Shakespeare compare eternity and mortality? Eternity and mortality. And how does he talk? And how does he talk about death? How does Shakespeare compare eternity and mortality? कि शेक्सपियर किस तरह अपने दोस्त, अपने फ्रेंड की जो अमरता है, एटर्निटी और मोर्टैलिटी, नश्वरता है, या जो अमरता और नश्वरता है उसको किस तरह कंपेयर करता है, किस तरह उसकी तुलना करता है. एंड हाउ डज ही टॉक अबाउट डेथ, और वह मौत के बारे में किस तरह बात करता है, मौत के बारे में हमें क्या बताता है. द आंसर इज दैट एटर्निटी मीन्स टाइमलेसनेस. एटर्निटी टाइमलेस होती है, कभी ख़त्म नहीं होती. मोर्टैलिटी मीन्स ट्रांजियंस. मोर्टैलिटी ट्रांजियंस है, थोड़े समय के लिए है. इम्परमानेंस एंड डेथ, इम्परमानेंस है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है. The poet says that all beautiful things are subject to decay. कवि कहना चाहता है कि सभी चीज़ें खत्म होने वाली हैं. Only great works of art like his own verses can live forever. केवल और केवल आर्ट की चीज़ें, जो कला की चीज़ें हैं, वो हमेशा रहेंगी. जैसे कि विलियम शेक्सपियर की कविताएं, वर्सेस. द पोइट पर्सोनिफाइज डेथ. पोइट डेथ को पर्सोनिफाई करता है, उसका मानवीकरण करता है, उसे एक मनुष्य की तरह पेश करता है, प्रेजेंट करता है. ही सेज दैट डेथ इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, कि मौत विनाशक है. ही स्पेयर्स नन, वह किसी को नहीं छोड़ती. He boasts that all living and non-living things wander in his shade. Whether non-living thing or living thing, चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सब कुछ खत्म होने वाला है. इन द शेड ऑफ डेथ, मौत के साए में. ही कैन डेवर एनीवन वेन एवर ही लाइक्स, और जब भी चाहे वह किसी को भी निगल सकती है. मौत किसी को भी निगल सकती है. दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज शेक्सपियर से अबाउट, व्हाट डज Shakespeare say about the beautiful objects of the world, and how does he compare, and how does he compare
the beauty of his friend to other beautiful objects. Page number 11. What does Shakespeare say about the beautiful objects of the world? शेक्सपियर संसार की सभी सुंदर चीज़ों के बारे में क्या कहता है? एंड हाउ डज ही कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू अदर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, और वह अपने मित्र की, अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की संसार की दूसरी सुंदर चीज़ों से किस तरह कंपेयर करता है? द आंसर इज दैट शेक्सपियर सेज दैट एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट लूज इट्स ब्यूटी आफ्टर सम टाइम। शेक्सपियर कहता है कि इस संसार में सारी जो नश्वर चीज़ें हैं वो एक समय में ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो जाएंगी। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है। नो ऑब्जेक्ट कैन रिटेन इट्स ब्यूटी फॉर एवर, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, जो सुंदरता है वो थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इट फेड्स अवे इन द कोर्स ऑफ टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग या फेड्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। शेक्सपियर सेज दैट एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट लूज इट्स ब्यूटी आफ्टर सम टाइम, कि इस संसार की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी, फेड हो जाएंगी। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बट द पोइट सेज दैट हिज फ्रेंड्स यूथ एंड ब्यूटी आर इटर्नल, लेकिन उसके जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है, यूथ है, वो हमेशा रहने वाली है, वो इटर्नल है। दे शैल नेवर फेड और डाई, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इवन डेथ कैन डू नो हार्म टू द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, यहाँ तक कि मौत भी उसके फ्रेंड की सुंदरता को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, हानि नहीं पहुँचा सकती। दैट इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। Now we'll study essay type questions of that sonnet. Essay type question. Question number 5. Give in your own words, give in your own words a brief summary of Shakespeare sonnet. Shakespeare sonnet. Shall I compare the to a summer's day, to a summer's day. Or what does Shakespeare say about the matchless beauty of his friend? Page number 16.
द आंसर इज दैट द पोएम इज अ सोनेट. एक सोनेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. वी आर स्टडिंग sonnet by William Shakespeare, sonnet 18. The poem is a sonnet. It is addressed to the poet's friend, the Earl of Southampton. ये कवि के फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को संबोधित की गई, एड्रेस की गई है. इन इट द पोइट पेज अ रिच ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी टू हिज फ्रेंड. इनडायरेक्टली ही प्रेज द हाई क्वालिटी ऑफ हिज वर्सेस ऑल्सो. इस सोनेट के माध्यम से विलियम शेक्सपियर अपने फ्रेंड को एक श्रद्धांजलि दे रहा है, उसकी ब्यूटी को. इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर विलियम शेक्सपियर अपनी कविताओं की प्रेज कर रहा है, अपनी वर्सेस की प्रेज कर रहा है. इन इंग्लैंड समर इज़ अ प्लेजेंट सीजन. इंग्लैंड में जो समर है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है. It is full of beauty, but the poet says that his friend is more sweet and beautiful than a summer day. लेकिन कवि कहता है, विलियम शेक्सपियर कहता है कि उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो इंग्लैंड का जो समर होता है, जो गर्मी का मौसम होता है, उससे भी सुंदर है. He points out some drawbacks in the summer season. और वह गर्मी के मौसम के कुछ कमियां बता रहा है. Sometimes the sun shines too hot. गर्मी के मौसम में कहता कभी कभी जो सूर्य है बहुत तेज हो जाता है, हॉट हो जाता है. ऑफन इट्स गोल्ड कम्प्लेक्शन लूज इट्स ब्राइटनेस. और इसकी जो ब्राइटनेस है कभी कभी वो ख़त्म हो जाती है. कॉम्प्लेक्शन, इसका जो कलर है वो भी बादलों के कारण ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है. मोर ओवर द समर सीजन लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. प्राय जहाँ तक गर्मी के मौसम की बात है तो कहता है ये थोड़े से समय के लिए ही रहता है. इनफैक्ट सेज द पोइट एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स लूज इट्स ब्यूटी आफ्टर सम टाइम. वास्तव में कवि ये बताना चाहता है हर एक वस्तु जो ब्यूटीफुल है, जो सुंदर है, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है. इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर. ये नेचर का लॉ है. इट कैन ऑल्सो हैपन बाई चांस और एक्सीडेंट. चांस से भी हो सकता है, ये एक्सीडेंट से भी हो सकता है. बट द पोइट सेज दैट हिज फ्रेंड्स यूथ एंड ब्यूटी आर इटर्नल. लेकिन कवि कहता है कि उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो हमेशा रहने वाली है, इटर्नल है. दे शैल नेवर फेड और डाई. वो कभी ख़त्म नहीं होगी. डेथ शैल नेवर बी एबल टू ब्रैग दैट द पोइट्स फ्रेंड टू वॉन्डर्स इन इट्स शेड. कि मौत भी डिंग नहीं मार सकती, बोस्ट नहीं कर सकती, ब्रैग नहीं कर सकती. ब्रैग मीन्स बोस्ट, डिंग मारना. वो डिंग नहीं मार सकती, बोस्ट नहीं कर सकती कि वो मेरे फ्रेंड को ख़त्म कर देगी. द पोइट इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज वर्सेस शैल बी रीड सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी. और कवि ये पूरा कॉन्फिडेंस से कहता है कि जब तक उसकी कविताएं, जब तक उसकी सोनेट्स पढ़ी जाएंगी और जब तक लोग देख सकते हैं, तब तक उसके फ्रेंड की ब्यूटी, उसकी वर्सेस की, उसकी कविताओं की ब्यूटी वो हमेशा रहेगी. दस व्हेन द पोइट्स फ्रेंड इज मेंशन इन दीज वर्सेस ही विल ऑल्सो बिकम इमोर्टल थ्रू देम. और जब तक ये जब ये कविताएं पढ़ी जाए, जब ये वर्सेस पढ़ी जाएंगी, उसका फ्रेंड भी अमर हो जाएगा, अमर रहेगा. द पोइट्स वर्सेस शैल एक्ट एज ए कंटेनर दैट विल प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड फॉरएवर. और कवि विलियम शेक्सपियर की जो कविताएं हैं वो एक ऐसे कंटेनर की तरह हैं जिसने उसके फ्रेंड की ब्यूटी को संभाल के रखा है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज माई second lecture for online students. If you have any kind of queries, please comment. I will try my best to remove your problems. Thank you for watching. Thank you very much.